یہ کانفرنسیں، یہ اجتماعات کیوں ہوتے ہیں؟ ہم لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، دن بھر موبائل یوز کرتے کرتے اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، شام میں لگجا کو چارجنگ کو لگاتے تاکہ اس میں چارج چڑھے۔ رمضان ہو گیا، الحمدللہ رمضان ہو کر بھی 2 مہینے ہونے آ رہا۔ رمضان میں جو ایمان کی بیٹری ہماری چارج ہوئی تھی، یہ 2 مہینے میں ڈاؤن ہو گئی۔ جب ہماری ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، ہمارا ایمان کو چارج کرنے کے واسطے یہ جلسے، یہ جلوس، یہ اجتماعات قائم کیے جائیں۔ الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع، خالی یہ شادی ہال کا کرایہ ہے 5 لاکھ روپے، کھانے کا 2 وقت کا انتظام 12 لاکھ روپے انتظام، یہ ضلعی جمعیت اور اطراف و اکناف کے لوگ مل کر رہے ہیں۔ کوئی معمولی قربانی نہیں، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میرا عنوان نوجوانوں کی اصلاح ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کا تو مین آف دی بونز، انسان کے باڈی کے سب سے اہم ہڈی ریڑھ کی ہڈی۔ کسی قوم کے نوجوان زندہ دل، متحرک، نیک متقی رہیں گے، وہ قوم ترقی پر پہنچے گا۔ کسی بھی قوم کے نوجوان عیاشی، فحاشی اور بے دین ہو جائیں گے، وہ قوم تنزلی اور وہ قوم بربادی کے نتیجے پر پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو جینے کے لیے جتنی عمر دیتا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آ پائے گی حتی یسأل عن 5، اللہ اس سے 5 باتوں کا سوال کرے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، تیری جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہاں اسے صرف کیا۔ وعن عمرہ فیما افنا، تمہاری عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہاں اسے کھپایا۔ اللہ تعالیٰ ان 5 سوالات میں جوانی کا سوال، عمر کا سوال کرے گا۔ اور بعض روایت میں جو فرصت کے لمحے ہیں، ان فرصتوں کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، میں نے تجھے فرصت کے لمحات دیے تھے، کیا کیا تو نے اس میں؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری جوانی، ہماری عمر اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر گامزن ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم کامیاب ہونے والے بن جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی اللہ کو ناراض کرنے، شیطان کو خوش کرنے جیسی زندگی کے راستے پر گامزن ہے، دنیا میں ذلیل، آخرت میں عذاب علیم کے شکار بن جائیں گے۔ آج نوجوانوں کے اندر دینداری کم، دنیا داری زیادہ۔ دیکھو ہمارے نوجوان 90% نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے جھاڑتے رہتے نیچے۔ ہمارے نوجوان ایسے نظر آتے، ایسا لگتا ہی نہیں یہودیاں کا بچہ کی نہیں نصرانیاں کا بچہ ہے۔ گل ہاتھا میں برائسلیٹ گتے، گلے میں چائنا گتے چاندی کے، ایسا لگتا روڈی نمبر 1، کیڈی نمبر 1۔ اور کپڑے بھی ایسے پہنتا، اللہ اکبر، شرٹاں کنے کا چولی کے وتے، پینٹاں کنے کا چڈی کے وتے، چھوٹے چھوٹے پینٹاں، چھوٹے چھوٹے شرٹاں۔ اب وہ بھی ڈھنگ سے پہنا تو بیچارہ اچھا نظر آتا، سامنے سے پھٹکور ہتا، پیچھے سے چھلکور ہتا، مکھیاں گھستے رہتی، باہر نکلتے رہتی۔ کیا بھئی دس از اے نیو اسٹائل، سڑگار کا اسٹائل۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کی صحبت انتہائی بری صحبت، اچھی صحبت کم، بری صحبت زیادہ۔ رات کے 12 بجے تک دوستان کے ساتھ گلیاں میں، بازاراں میں، بس سٹانڈاں میں، پانا کے شاپاں کے پاس پانا کھا لے کو، سگریٹاں پی لے کو، گپے مارنے کی عادت ہمارے نوجوانوں کی۔ اور ہمارے نوجوان آدھے بڈھے ہو جاتی، شادیاں نہیں کرتے۔ ماں باپ کرے تو نا، بچے کر لیں گے۔ ماں باپ کو پوچھے کئی کو بھئی تمہارے بچے ہیں کہ شادی کر،
अभी उन्हें छोटा बच्चा दूध दिए तो पीले को बिड़ता, छोटा बच्चा, कितना बच्चा? 50 बच्चा के बिरयानी खा डकारान देखो कबूल करने का जगह नामा रख रख को आते रहता, बिरयानी खाता डकारान देता नहीं, इन्हें गिट्टी है, उन्हें लंबी है, इन्हें काली है, उसकी नाक छोटी है, इसके काना बड़े हैं, उसकी मिले वो नामा, इन्हें कैसा ऐनक में झांक को देखा आला डांबर का रोड उठ गए रहता, यहाँ खड्डे वहां पिंपल आए यहाँ कीड़े, फिर क्या बच्चे को नामा रख 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 को बिरयानी खा खा पेट करने का कुंडा कर लिया रहता। अल्लाह का बंदा, नौजवानों की शादियां देर, जिस कौम के नौजवानों की शादियां उनकी हकीकी उम्र में न किया जाए, बताओ वो नौजवान फितने में नहीं मुब्तला होंगे तो कहां मुब्तला होंगे? अरे ये जमाना 21वीं सेंचुरी का जमाना है, ये जमाना इंटरनेट का जमाना है, ये जमाना मोबाइल का जमाना है, ये जमाना फिल्मों का जमाना है। निगाह उठाए तो पोस्टर, मैगजीन ओपन करे तो गंदे तस्वीर, एक कोई टीवी टेलीविजन का चैनल डाले तो छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले औरतों के एडवर्टाइज, फितनों का जमाना। अरे नबी के जमाने में ये टेलीविजन भी नहीं, टीवी भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं, तब भी सहाबा, नौजवान सहाबा आकर बोलते थे इन्नी रजनुन शाबुन व अना अतज़व्वजु बिह, ऐ अल्लाह के नबी मैं नौजवान हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे खौफ है कहीं मैं अपनी जवानी में जिना के फितने में ना मुब्तला हो जाऊं। ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए शादी का इंतजाम कीजिए। अल्लाह के नबी के पास उस जमाने में सहाबा आकर बोलते हैं। आज के जमाने में अगर हम अपने बच्चों की शादियां सही उम्र में नहीं करेंगे, शादी से पहले उन्हें बच्चा का बाप हो जाता, शादी से पहले हमारी बच्चियां बच्चों की माँ हो जाती, अबाशना करारी जाकर अस्पताल की रिपोर्ट देखो, शादी से पहले कॉलेज पढ़ने वाले लड़के, कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां 100 में 70% जाकर अस्पतालों में या तो मानी हमल की गोलियां खाकर अपना हमल गिरा रही है या अस्पतालों में जाकर अबाशन करा रही है। शादी से पहले इनके तमाम सुहागरातें खत्म हो रही है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वालिदैन। अगर उनकी शादियां सही उम्र में आप करते, आपके बच्चे ये जिना जैसे फितने में मुब्तला नहीं होते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आजकल के नौजवानों में शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशावर चीजों की बीमारियां। मौलवी साहब मेरा बच्चा सुधरता नहीं, मौलवी साहब मेरा बच्चा बिगड़ गया, कैसा सुधारना? जब ढाली दरख्त छोटा रहता, ढाली कौली रहती, कैसा भी मोड़ो मुड़ जाती, जब दरख्त बड़ा हो जाता ढाली सख्त हो जाती, उसे मोड़ना चाहो मुड़ती नहीं, ढाली टूटने चली आती। बचपन में अगर आप उसे दीनदारी की तरबियत देते, अगर उसे इस्लामी माहौल के अंदर रखते, अगर उसे अल्लाह और उसके रसूल का खौफ दिलाते, उसके दोस्तों अहबाब पर निगाह रखकर उसकी बचपन से कड़ी निगाह रखकर सही तरबियत देते, आज उन्हें शराबी, जानी और एक नंबर का अय्याश और फहाश हरगिज नहीं होता। जिम्मेदार कौन? हमें माँ बाप। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, अन उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नल्लाह लयुअजबु मिन अश-शाब अल्लज़ी लस्तलहु सबवा, रवाहु अहमद। अल्लाह के नबी कहते, अल्लाह को ऐसा नौजवान ज्यादा पसंद है जो अय्याशी में मुब्तला ना हो, जो अपनी जिंदगी में लघु चीजें ना रखने वाला हो, जो अपनी जिंदगी से फहाशी को परे रखने वाला हो, ऐसा नौजवान अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। कयामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला 7 खुश नसीबों को अर्शे इलाही का साया नसीब करेगा। बुखारी मुस्लिम की मशहूर हदीस, सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु, 7 लोगों को अल्लाह अर्शे इलाही का साया नसीब करेगा। उनमें का एक शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान भी अल्लाह के अर्श के साये में रहेगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में बड़ी, जिसकी नशरो नुमा, जिसकी तरबियत, जिसकी जवानी की चौड़ ऊंचाई अल्लाह की इबादत करते हुए, इस्लाम की तालीम हासिल करते हुए, अल्लाह का खौफ करते हुए, अल्लाह की बंदगी करते करते उसकी जवानी बढ़ी, ऐसे इंसान को भी अर्शे इलाही का साया नसीब करेगा। हमारी जवानी टीवियां देखने को बड़े हो रही, मोबाइलां घूरने को बड़े हो रही, हमारी जवानी
गेमा खेलने को बड़े हो रहे हैं। हमारे बच्चे के जी, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, उसकी अम्मा उसे चारने वाले खाना खिलाना चाह रही तो मोबाइल में जब तक कार्टून लगा को नहीं देते, वो छोटा अभी बोलने भी आता नहीं उसे, मोबाइल देखे बिना उन्हें खाना भी नहीं खा रहा। मोबाइल की बीमारी लग गई। हमारे इस जनरेशन को, हमारे इस नस्ल को मोबाइल का बहुत बड़ा रोग लग गया। हमारी जवानी कैसी बड़ी हो रही है, या तो मोबाइल देख ले को, या तो यूट्यूब देख ले को, या गूगल देख ले को। बचपन से उसे चैटिंग करने का मालूम हो जाता, कैसा चैटिंग करना, कैसा दोस्ती करना, कैसा प्रोफाइल बनाना, सामने वाले को कैसा उल्लू बनाना, फेसबुक में आईडी कैसा ओपन करना, सब मालूमात। बुढ़े बाबा को मालूम होता नहीं, बच्चा पूछता बेटे ये मोबाइल कैसा चलाना बा, ये कैसा अकाउंट ओपन करना बेटे, मेरा अकाउंट कहीं डट हो गया जरा देख बेटे। बच्चा पूछता उन्हें, वत्ते माहिर हमारे बच्चे। शाफुन नशाफी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत करते करते बड़े होने वाले जी अर्श के साए में, मोबाइल घूरले को फितने में पड़ने वाले नहीं। वरजुलुम मुअल्लकुन क़ल्बुहु फिल मसाजिद, ऐसा नौजवान जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा रहा हो। हमेशा मतलब एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने वाला, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन, उसका दिल मस्जिद में लगा हुआ नौजवान अर्शे इलाही के साए में रहे। हमारा दिल कहाँ है? हमारा दिल कहाँ है? कॉलेजा में है, हमारे गर्लफ्रेंड के पास है। हार्ट मार्क भेजता उन्हें, हार्ट मार्क, ये मेरे दिल में तू है, तेरे दिल में मैं हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं, ऐसा वैसा बोलकर उसे उल्लू बनाना। एक एक नौजवानों के 10-10 गर्लफ्रेंडा, एक एक लड़कियों के 10-10 बॉयफ्रेंडा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इन्हें क्या समझ रहा, मेरे बाबा को मालूम नहीं मेरा अफेयर, मेरे भाइयों को मालूम नहीं, मेरी अम्मा को मालूम नहीं, मैं आराम से मेंटेन कर रहा हूं। अरे नौजवान, तेरी अय्याशी भले तेरे घर वालों को नहीं पता होंगी, लेकिन अल्लाह शाहिद है, अल्लाह समी व बसीर है, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। तेरे दिल का भेद तक वो जानता है, कोई तुझे देखे ना देखे। ऐ मेरी प्यारी बहन, ये जान ले, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें, खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द। अत्तय्यिबून लित्तय्यिबाति वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबून, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, पाक औरतों के लिए पाक मर्द। अल्लाह का उसूल है ये, अल्लाह का उसूल है। अगर तू शादी से पहले जिना करेगी, शादी से पहले अय्याशी करेगी, शादी से पहले फहाशी करेगी, अल्लाह ताला को तेरे तमाम अय्याशी का इल्म है। याद रख, अल्लाह तुझे जलील कर देगा इस दुनिया में, अल्लाह जलील और ख्वार करके रख देगा उसी अर्शे इलाही के साए में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ऐसा आदमी जिसे किसी खूबसूरत लड़के ने जिना की दावत दी, वरजुलुन तअत इम्राअतुन ज़ात जमाल व मनसबिन, एक ऐसे मर्द को एक ऐसी खूबसूरत औरत जिना की दावत देती है, ऐ मेरे महबूब मेरे साथ जिना कर लो। लेकिन ये बंदा अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से डरने वाला, ये कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ये बुराई नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अदा मेरे अल्लाह को इतना पसंद, अर्शे इलाही के साए में अल्लाह उसे जगा देगा। सही बुखारी की हदीस है, मरसद बिन अबी मरसद रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम कबूल करते हैं, गुलामों को छुड़ाने में माहिर थे। मदीना से मक्का आते हैं, गुलामों को छुड़ाते हैं। अचानक उनकी पुरानी एक माशूका जिनका नाम इनाक है, इनाक जैसी माशूका के मुलाकात होती है। इनाक कहती है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मरसद, इतने दिन कहाँ गए थे, आओ जिना करते हैं। लेकिन मरसद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपने हाथ से नबी के हाथ में हाथ रखकर ये बयान किया है, ऐ अल्लाह के नबी, आज के बाद मैं कभी जिना नहीं करूंगा। कसम अल्लाह की, जिन हाथों ने नबी मुतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूकर वादा किया है, कसम अल्लाह की, जिना करना तो दूर की बात, मेरा तुझे छूना, हाथ लगाना भी हराम, मैं जिना नहीं कर सकता। पीछे हट जाते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे अल्लाह वालों को अल्लाह अर्शे इलाही के साए में जगह नसीब करेगा। आपको मालूम, सही बुखारी मुस्लिम की वो मशहूर हदीस जिसमें बनी इस्राएल के वो 3 गार वाले गार में पनाह लेते हैं, चट्टान ढांक लेती है,
तीनों अल्लाह से अपने नेकियों को वसीला बनाकर अल्लाह से दुआएं करते हैं। उनमें का एक आदमी कहता है, ऐ अल्लाह, मेरी चाचा की बेटी बड़ी खूबसूरत, मेरी कई दिन से उस पर निगाह थी, अचानक वो मेरे पास कर्जा लेने आई, मैं इस शर्त पर कर्जा दिया, अगर तू कर्जा वापस नहीं देगी, जो मैं बोलूंगा तुझे सुनना पड़ेगा। वो ले गई, वो इतनी गरीब थी, मेरा कर्जा लौटा ना सकी, मैं उसे लेकर पहाड़ों की वादियों में जिना करने के लिए चला गया। वो रोने लगी, वो कांपने लगी, वो थर्राने लगी। मैं पूछा क्यों रोती है? वो कहती है कि मेरे भैया, मेरी जिंदगी में आज तक ये बुराई का काम मैंने कभी नहीं किया, मैं कभी नहीं की, मेरे हुर्मत को पामाल मत कर मेरे भैया, हाय मेरी मजबूरी, इस खर्चे की वजह से मैं यहाँ तक आ गई। याद रख, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के सामने एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक लम्हे का जवाब देना पड़ेगा। अगर अल्लाह आज इस लम्हे के बारे में पूछ ले, क्या कर रही थी, क्या जवाब दूंगी? इस साल, इस महीने, इस दिन क्या कर रही थी, क्या जवाब दूंगी? मेरे भैया, अल्लाह की पकड़ से डरती हूँ, अल्लाह के खौफ से कांपती हूँ। मेरी बहन, तूने अब तक ये काम नहीं किया, इतना डरती है। मेरी सारी जिंदगी जिना में गुजर गई, अल्लाह से अगर मैं माफी मांगना चाहूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मेरे भैया, अल्लाह हर बड़े से बड़े गुनाह को माफ करता है अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करेगा। मेरे अल्लाह, तू जानता है उस दिन मैं जिना के करीब जाकर जिस अंदाज से मेरी बहन ने मेरे दिल में तेरा खौफ जगाया, जिना के करीब जाकर मैं वापस आ गया। अगर मेरी अदा तुझे पसंद आई हो, अल्लाह, आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूं, मुझे बचा ले। अल्लाह तीनों की दुआएं कबूल करके उन तीनों को बचा लिया। मेरे भाइयों, जो बचना चाहता है, जो बुराई से रुकना चाहता है, अल्लाह उसे जरूर बचाएगा। लेकिन जो जाकर खड्डे में पड़ना चाहता है, जो जिना करना चाहता है, वो यकीनन जिना भी करेगा, दुनिया में जलील भी होगा, आखिरत में अजाब भी पाएगा। अब तक आपने बहुत जिना किए होंगे, बहुत फिल्में देखे होंगे, बहुत गाने सुन लिए होंगे, बहुत गालियां दे लिए होंगे, लेकिन सुधरने का एक वक्त आता है इंसान की जिंदगी में। अगर अब भी नहीं सुधरोगे, याद रखो, मौत का फरिश्ता कभी कॉल करके नहीं आता, मौत का फरिश्ता कभी मैसेज करके नहीं आता, अचानक आता है, हल्लख में हाथ डाल के रूह कब्ज करके चला जाता है। तुम्हारी मौत अगर नेकियां करते हैं के हालत में आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिल खवातिम, अमाल के दारोमदार उसके खातिमे पर होता है। जैसा उसका खातिमा होगा, अल्लाह के पास वैसा हिसाब होगा। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर इंसान को उसी अमल पर अल्लाह जगाएगा जो अमल करते करते वो दुनिया से मर गया। जिना करते मरोगे, अल्लाह जानियों में जगाएगा। शराब पीते मरोगे, अल्लाह शराबियों में जगाएगा। नमाज पढ़ते मरोगे, अंबिया सिद्दीकीन शुहदा के साथ जगाएगा। बेनमाजी मौत मरोगे, फिरौन हामान कारून के साथ अल्लाह जगाएगा। शिर्क और बिदअत करते मरोगे, मुशरिकीन के साथ जगाएगा। मुवहिद और तौहीद परस्त मरोगे, अल्लाह मुवहिदीन के साथ जगाएगा। इसीलिए अपनी जिंदगी की इस्लाह करो, अपने आमाल की इस्लाह करो, अपने अकीदे की इस्लाह करो, अपने अखलाक की हिफाजत करो, अपने अखलाक की इस्लाह करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है, इक़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, पांच चीजों से पहले गनीमत जान लो। पांच चीजों से पहले गनीमत जान लो। उसमें का एक, वो शबाबी का क़ब्ल हरमी, तेरी जवानी को गनीमत जान ले तेरा बुढ़ापा आने से पहले। वो फराग का क़ब्ल शुगली, तेरी फुर्सत को गनीमत जान ले तेरी मशगूलियत आने से पहले। आज हमारे नौजवान फ्री हैं, लेकिन करते क्या है? आईपीएल क्रिकेट देख ले बैठता हमारा नौजवान फ्री है। अल्लाह ताला कह रहा है नबी के जबान से, वो फराग का क़ब्ल शुगली, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, आज जो फुर्सत के लम्हात मैंने दिए हैं उसे गनीमत जान ले, यकीन जान ले, ये फुर्सत तेरे पास हमेशा नहीं रहेगी। इन फुर्सत के लम्हात में अल्लाह को राजी करने वाले नेकियां कर ले। हमारा नौजवान फुर्सत के लम्हात में या तो क्रिकेट खेलने जाता, नहीं आईपीएल क्रिकेट देखने बैठता, खाली बैठता नहीं,
चीखा मारता, सीटा मारता, थाल्या बजाता, शिक्षा उन्हें मारते रहता, फोरा उन्हें मारते रहता, उछल उछल को इन्हें पड़ते रहता. ऐसा बमड्या मारता तो या कपला को इसे दे देंगे ना, मिडिल बड़ा कपला को इसे दे देंगे ना. येताच नाही, बेट्टा बेट्टा लगात मरता. ये पंजाब जीतती, राजस्थान हारती, कर्नाटक जीतती, आंध्र हारती, वो दिल्ली जीतती, ये कलकत्ता हारती. बेट्टा बेट्टा लगाता. अल्लाह अकबर. रिश्वत, ये जुआ है, जुआबाजी, सट्टाबाजी खेल को मरता. क्या जवाब दोगे? अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में तेरी जवानी के बारे में पूछेगा, तेरे फुर्सत के लम्हात के बारे में पूछेगा, तेरी उम्र के बारे में पूछेगा. क्या जवाब दोगे? या अल्लाह अपनी जवानी में आईपीएल क्रिकेट देखने का, ये जवाब दोगे? या अल्लाह मेरी जवानी में लड़कियां से दोस्ती करने को, याशी करके, ये जवाब दोगे? या अल्लाह मेरी जवानी में फिल्म देखने का, ये जवाब दोगे? या अल्लाह मेरी जवानी में मैं बहुत ज्यादा दाढ़ी मुंडाले को फैशन कर कोई स्टाइल मारता है, ये जवाब दोगे? बोलो, क्या तुम्हारे ऐसे जवाब से अल्लाह जन्नत देगा? ये जन्नत के 8 दरवाजे खोलेगा? कहाँ है नौजवान? क्या कर रहे हैं नौजवान? अपने आप को सुधारो, अपने आप की इस्लाह करो. तुम्हारे मौत आने से पहले, मौत का फरिश्ता तुम्हारे नजदीक आने से पहले इस्लाह कर लो. मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अक़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज. ऐ नौजवानों की जमातों, तुम में से जो शादी की इस्तिताअत रखते हो, उनको चाहिए कि वो फौरन शादी कर लिया करें. क्यों? ये शादी तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करेगी और ये शादी तुम्हारे निगाहों को बदनिगाही से नीचे करेगी, गंदी निगाह पड़ने नहीं देगी. अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ऐ नौजवानों, अगर बाजार में इत्तेफाक से किसी हसीन औरत पर तुम्हारी निगाह पड़ जाए, पहली निगाह अल्लाह ने माफ किया, लेकिन दूसरी निगाह अल्लाह ने माफ नहीं किया. नहीं, चलो भाई दूसरी निगाह भी पड़ गई. दिल फितने में अंगेख्ता होना चाह रहा, दिल फितने में माइल हो रहा, जिना की तरफ दिल में फसवसे पैदा हो रही. नबी ने क्या कहा? ऐ शादीशुदा नौजवान, अगर बाजार में या किसी नामहरीम औरत पर अचानक तेरी निगाह पड़ गई, तेरा दिल फितने में मुब्तला होना चाहता है, तो फौरन आकर अपने घरवाली से दिल की तस्कीन हासिल कर लिया कर, अपने घरवाली से मुलाकात कर लिया कर. हमारे नौजवानों की शादियां होंगी तो तस्कीन हासिल करेगा, शादियां नहीं होंगी तो जाकर औरतों से जिना करेगा और क्या करेगा. इसीलिए प्यारे भाइयों, अपने बच्चों की शादियां सही उम्र में कर दिया करो. अपने बच्चों की शादियां सही उम्र नहीं. मुल साहब, अभी कमाना उन्हें, अभी जमाना, अभी बल्ला का बैंक बैलेंस करना, अभी नौकरी आना, नौकरी लगाने के चक्कर में छोकरी को गंवाले को पूरा आधा बुढ़ा हो जाता. सिर में बाला झड़ को, बादल हट को, बीच में का चांद नजर आते रहता. क्या भाई अभी बच्ची की शादी करते नहीं, अभी बच्चा, मेरा बच्चा, छोटा बच्चा, सिर में चांद नजर आते रहता, बादल पूरे बाला के हट गए रहते, चांद दिखते रहता, पूरा पटनती आते रहता. कहाँ भाई अभी तालू दिखते रहती, तालू नहीं, अभी छोटा बच्चा मलिसा, मेरा बच्चा. और शादी के लिए नजराने, जहेज, मेरा बच्चा, हमने क्या भी दो न को तुम्हारे जवाई को दो. क्या दो? रॉयल इनफील्ड का किसी की बुलेट निकली नवी, वो दो. तुम्हारी बेटी को बिठा ले, गली में गया तो बुड़ 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 का तो आवाज आना. ऐसा तुम्हें तुम्हारे जवाई को दो, हमने क्या भी दो न को. ऐसा बोल बोल को इनडायरेक्ट उस कने से काट ले पूरा खबरस्तान के खबर में उतार डालती बच्ची के बाप. डिपेंडा कैसे? बच्ची को देखने गए टम्पो, मुंह में से कहीं का भी निकलता नहीं. बच्ची को पसंद करती, मुंह में से क्या भी निकलता नहीं. यहाँ तक के बैठ को बच्ची के लिए बात घट भी कर लेती, जब भी मुंह से क्या भी निकलता नहीं. शादी की डेट फिक्स करना, शादी के कारण भी छपा डालता. अब डेट फिक्स करना, जब हल्लू मुंह में से एक सांपा निकलती इसके. देखो साहब, हम ना 20 तोले सुनना होना, हम ना ये गाड़ी होना, हम ना वो होना, हम ना ये होना. भुक्के फकीरा, मॉडर्न फकीरा, अंदर से पूरे निकाल को सड़ती. जब बच्ची का बाबा सिर खुजाले बोलता, हो जी ये बात बच्ची देखने आज टम्पो कहीं बोले नहीं, तुम्हें पहले बोलना था, हमें नहीं करते थे रिश्ता.
شادی کے کارڈ چھپ گئے, شادی کا ڈیٹ فکس ہو گیا, ہال بک ہو گیا, اب شادی رکھ لینا, کسٹم ہلو نکال رہی ہے, سانپا بچوا. ہماری ڈیمانڈ نہیں, بچے کے دولہے کے بھانا کی ڈیمانڈ ہے, دولہے کی اماں کی خواہش ہے. استغفر اللہ. یاد رکھو, اگر کسی کے بچی کے باپ پر ظلم کرو گے, اللہ تمہارے پیٹ میں بھی بیٹیاں دے گا, تمہارے پیٹ میں بھی بیٹیاں دے گا. تم کسی پر ظلم کرو گے, کوئی تم پر ظلم کرے گا. کسی کی بچیوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کرو, کسی کی بچیوں کا سودا نہ کیا کرو. آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا, کہاں پہنچ گیا. افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. جاؤ تمہارے ہر شہر کے جا کر بڑے بڑے رجسٹر آفس میں دیکھو, ہماری عائشہ نام کی لڑکی کسی نرسمہ کے ساتھ شادی کر رہی ہے, ہماری فاطمہ نام کی لڑکی کسی راجندر کے ساتھ شادی کر رہی ہے, ہماری مسلم بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں. کون ذمہ دار؟ ہم ذمہ دار. یہ جہیز کا مطالبہ کر کے, یہ جہیز کے لیے بچیوں کے باپ کا سودا کر کے اتنا مہنگا شادی بنا دیے, بیچارہ کیا کریں گا, وہ بچیاں بھی کیا کریں گے. 4 بھانا, ہمیں 6 بھانا, ہمارے بابا کو ایک بچی کو شادی کر کو دینے نہیں ہوتا. کتنے بچے کہاں سے اٹھیں گے؟ پھانسی ڈالک مرنے سے بہتر ہے غیروں کے ساتھ بھاگ کر جائیں. شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. پیارے نوجوانوں, اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرو, یہ جہیز جیسی لعنت معاشرے سے ختم کرو, سنت کے مطابق نکاح کرو, اللہ تعالیٰ خیر و برکتوں سے مالا مال کرے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائی